Hello student, today we are going to discuss application of derivatives in which we will study increasing and decreasing function, use of derivative, maximum and minimum, extreme and critical points, theorem first and second, greatest and least values, and after that the exercise. First of all, increasing function. Increasing function means to say if x1 is less than x2 in any interval AB, x1 is less than x2 like this, then their image is also in the same direction, means to say f of x1 is less than f of x2, then we will say that the function is increasing function. Let's discuss its definition. So a function is said to be strictly increasing function of x on any interval AB if x1 is less than x2 in any interval AB. This implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to AB. Now strictly increasing means to say monotonically increasing. If there is equality in images, means to say f of x1 equals to f of x2 also, then you can also say that the function is increasing. If there is only less than only one symbol, then it is strictly increasing. If there is less than or equals to, then it can be said increasing also. Now decreasing function. Decreasing function means to say if x1 and x2 are 2 points in any open interval AB and x1 is less than x2, then their images are in opposite relation, means to say f of x1 is greater than f of x2. यहाँ आपके पास x1 आएगा और यहाँ आपके पास नेक्स्ट है जो वो x2 आएगा. x2 पॉइंट की इमेज है f of x2 and x1 पॉइंट की इमेज है f of x1. Here x1 is less than x2 but f of x1 is greater than f of x2. So by definition, a function f of x is said to be a strictly decreasing function of x on AB if x1 is less than x2 in AB. This implies f of x1 is greater than f of x2. अपोजिट रिलेशन हो गया. देखो पॉइंट्स x1 इज लेस देन x2 है लेकिन इमेजेस f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB. नाउ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स टू से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और ओनली डिक्रीजिंग हो देन इट कैन बी इक्वल ऑल्सो. f of x1 can be equal f of x2. Now use of the derivatives. f of x कोई डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल AB if its first derivative is greater than 0 for all x belongs to AB. If and only if f of x is increasing on AB, means to say अगर हमने फंक्शन इंक्रीजिंग चेक करना है then f dash x is greater than 0, and if f dash x is less than 0 then f of x is decreasing on AB. सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे हम कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. लाइक दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन AB. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx हो गया इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, देन फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. देखो ये कर्व है हमारे पास, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग. एंड इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज लेस देन 0, देखो दिस इज द टेंजेंट and theta
is more than 90, that means it lies in the second quadrant में tangent is a negative, so f dash x is less than 0 है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये को हमारी कर्व है वो हमारी इस टाइप से बन रही है। नाउ वेरी फर्स्ट एग्जांपल, फॉर द फंक्शन f of x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, find the intervals where f of x is increasing and where it is decreasing. So first of all we will do its derivative. f of x equals to 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, f डैश x क्या है, उसका डेरिवेटिव यानी 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 16x हो गया प्लस 10x का डेरिवेटिव 10 हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, तो एंड आफ्टर दैट फैक्टराइजिंग इट 2 इंटू 3x माइनस 5 इंटू x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, f डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 लिख लेना है। जब f डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 रखा तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, एक तो 5/3 और एक 1 आया। तो हमने पूरी रियल लाइन को यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक इस यहाँ पर ये पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं 5/3 एंड 1। फिर उसके बाद हमने चेक करना है, देखो पूरी लाइन है आपके पास, यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गया, यहाँ आपके पास 1 हो गया, 5/3 हो गया यहाँ, एंड नेक्स्ट इज इन्फिनिटी हो गया। सो हमारे पास इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से 1, आफ्टर दैट 1 to 5/3, आफ्टर दैट 5/3 से इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी टू 1 इसके बीच में हमने कोई भी नंबर चूज़ करना है। सपोज़ हम यहाँ 0 चूज़ कर रहे हैं, 0 चूज़ कर रहे हैं तो f डैश एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 5, 0 माइनस 1 यानी माइनस 5 इंटू माइनस 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। एंड फ्रॉम 1 to 5/3, 1 से लेके 5/3 के बीच में, 5/3 के बीच में हम कोई भी नंबर यहाँ पुट करें, 4/3 पुट कर लें, तो 4/3 पुट करोगे, यहाँ आपके पास नेगेटिव हो गया, ठीक है, यहाँ आपके पास पॉजिटिव हो गया। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज़ अ नेगेटिव फॉर x ग्रेटर देन 5/3। तो ग्रेटर देन 5/3 दैट मीन्स हम 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 पुट करेंगे, दोनों के लिए प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 5/3 एंड इट इज़ डिक्रीजिंग फॉर द इंटरवल 1 से लेके 5/3 तक। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल वेरी क्लियरली। नाउ एग्जाम्पल सेकेंड, find the intervals in which the function f of x equals to x plus cos x in closed interval 0 to 2 pi increases or decreases। f of x है आपके पास x plus cos x, f dash x क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब देखो साइन x है, साइन x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, that means it is less than or equals to 1 for all x belongs to 0 to 2 pi। तो sin x equals to 1 किसके लिए है, pi/2 के लिए। तो f dash x is greater than 0 for all x except x equals to pi/2, क्योंकि देखो pi/2 पे अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो pi/2 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, एंड आप कुछ कोई भी और वैल्यू लोगे वो 1 से लेस ही होगी। हाफ लिया हमने, √3/2 लिया हमने, 1/√2 लिया, तो वो आपके पास 1 से लेस होगी, तो यहाँ पे f डैश x क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो f डैश x इज़ इंक्रीजिंग फॉर ऑल x इक्वल्स टू एक्सेप्ट x इक्वल्स टू pi/2। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब मैक्सिमम मीन्स टू से कि सपोज हम किसी पॉइंट ए पर चेक कर रहे हैं लाइक दिस, तो ए के लेफ़्ट में भी फंक्शन उससे कम है और ए के राइट में भी फंक्शन उससे कम वैल्यू दे रहा है, यानी ए के ऊपर ही आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है।
सेम एज मिनिमम। बी पॉइंट है तो इमेज इसकी एफ ऑफ बी होगी, तो बी पॉइंट पर ही सबसे लेस वैल्यू है। जब बी माइनस लैम्डा यानी स्मॉलर वैल्यू उसके अंदर माइनस की हमने, तब भी वैल्यू उससे ज़्यादा है, और जब बी प्लस लैम्डा डेल्टा किया हमने तब भी वैल्यू उससे ज़्यादा है। इट मीन्स द फंक्शन इज़ मिनिमम एट द पॉइंट बी एंड फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट द पॉइंट ए। So let y equals to f of x be any function. If f of a is greater than f of a plus delta and f of a is greater than f of a minus delta, यानी f of a ग्रेटर है किससे, a माइनस डेल्टा से भी और a प्लस डेल्टा से भी, फॉर एनी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा, देन a is called the point of maximum of the function. So in this figure, तो किस पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी, Q एंड S, दिस पॉइंट्स Q एंड S. If f of b is less than f of b plus delta and f of b is less than f of b minus delta for all small values of delta, यानी b plus delta पर भी ज़्यादा है वैल्यू और b माइनस डेल्टा पर भी ज़्यादा है, f ऑफ b आपके पास दोनों से कम है, देन b इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फंक्शन f ऑफ x. सो इन दैट फिगर मिनिमम वैल्यूज़ किस पर थी आपके पास, r और t, like this r point and this is t point. Now extreme points. The point of maximum or minimum of a function are called extreme points. That means at these points f dash x equals to 0 if it exists, कि अगर exist करता है तो f dash x equals to 0 होगा, या फिर exist ही नहीं करेगा, दैट मीन्स उसकी टेंजेंट आप बना ही नहीं सकते. लाइक दिस पॉइंट P पॉइंट एंड दिस Q पॉइंट, तो इनकी आपके पास टेंजेंट्स क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स, द पॉइंट एट विच f dash x इक्वल्स टू 0 और एट विच f dash x डजंट एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स. तो अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, जितने पॉइंट आपके पास एक्सट्रीमम के होंगे उसमें से कोई ना कोई आपके पास क्रिटिकल पॉइंट ज़रूर होगा. हाउएवर देयर मे एग्जिस्ट अ क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम. तो वहाँ कुछ भी ऐसे क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं जो एक्सट्रीमम ना भी हो. वेरी फर्स्ट थ्योरम, लेट द फंक्शन y इक्वल्स टू f of x बी कॉन्टिन्यूज इन सम इंटरवल कंटेनिंग x नॉट. तो उस इंटरवल के अंदर आपके पास x नॉट है. इफ़ f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज़ लेस देन x नॉट एंड f डैश x इज़ लेस देन 0 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन x नॉट. मीन्स टू से जब आपके पास x नॉट लेस देन है तब f डैश x ग्रेटर देन है आपके पास, और जब आपके पास x ग्रेटर देन x नॉट है तब f dash x is less than 0, then f of x has maximum value at x equals to x naught. Means to say, suppose किसी कर्व के ऊपर देखो पहले f dash x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद आपके पास सपोज अनदर पॉइंट आपका ये हुआ, पहले पॉइंट ये था, दैट मीन्स ये अनदर पॉइंट ये है, कोई एक्स पॉइंट आपका ये है, ठीक है. फिर टेंजेंट आपकी ये हो जाती है, ठीक है. जब आपके पास उस पॉइंट पर एफ डैश है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते जाते कहीं ना कहीं आपको एक मैक्सिमम वैल्यू दे कर गया है, तो वहाँ पर उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है. इफ़ एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0 व्हेन एक्स इज़ लेस देन एक्स नॉट एंड एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स नॉट. मीन्स टू से नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है जब, देन एफ हैज़ अ मिनिमम वैल्यू.
यानी नेगेटिव से पॉजिटिव आते आते तब हमारे पास क्या होगी, वो नीचे से कोई एक मिनिमम वैल्यू छोड़ के गया होगा. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. सपोज आप स्टेयर्स पर चढ़ रहे हो और वो नीचे उतर रहे हो. उसके बाद तो स्टेयर पर चढ़ के जब आपसे जैसे नीचे उतरे तो मैक्सिमम कितने फ्लोर तक आप गए, तो वो हो गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू. जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो और फिर नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो हम ये कहेंगे कि ना लास्ट आप कहाँ तक जाकर आए, भी फर्स्ट फ्लोर तक गए, ग्राउंड फ्लोर तक गए. दैट मीन्स आपको एक मिनिमम वैल्यू दी. तो अगर एफ डैश एक्स किसी पॉइंट के लेफ़्ट में ग्रेटर देन ज़ीरो है, उसी पॉइंट के राइट में लेस देन ज़ीरो है. यानी अगर हम इसे सपोज 5 पॉइंट है, 5 से पहले हमारे पास एफ डैश एक्स है पॉजिटिव, फिर आता है हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है. देन एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, यानी 5 पर. इफ़ एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी अगर सपोज मैंने -1 है, ठीक है, पहले फंक्शन नेगेटिव था, फिर फंक्शन आपका पॉजिटिव हो गया, यानी -1 से पहले वैल्यू ली हमने -2, तो -2 पर फंक्शन नेगेटिव है और 0 पर फंक्शन क्या है, वो पॉजिटिव है. हमने इसकी डेरिवेटिव चेक करनी है. तो फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट. होप सो यू हैव क्लियर दिस थ्योरम. नाउ थ्योरम सेकेंड, दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. अगर एक्स नोट कोई पॉइंट है इन द इंटरवल in which y equals to f of x is defined and f dash x equals to 0, f dash x not equals to 0 और उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं वो नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो f of x नॉट मैक्सिमम होगा अगर उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है. मिनिमम होगा अगर उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव greater than 0 है. This is known as the second order derivative test also, and it's very important. We will try all the questions firstly by second order derivative, and if second order derivative fails, then we come to the first derivative test. Means to say, what is the procedure of this? First of all, f of x and write its derivative f dash x, and after that put f dash x equals to 0. then you will find the points. तो x की वैल्यूज़ सपोज 1 आई, 2 आई, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, फिर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हम उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे जहाँ पर वैल्यू लेस देन 0 है, वहाँ फंक्शन आपका मैक्सिमम है. जहाँ वैल्यूज़ आपके पास ग्रेटर देन 0 है, वहाँ फंक्शन आपका मिनिमम है. नाउ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़. The greatest or least values of a continuous function f of x in an interval ab is attained either at the critical points or at the end points of the interval. कि या तो आप उसके जो critical points कौन से हो गए, f dash x को आप इक्वल्स टू 0 रखोगे जब, तो वो उसके critical points हैं. So obtain the values of f of x at these points and compare them to determine the greatest and the least values of the interval. For example, find all the points of maxima and minima and the corresponding maximum and minimum values of the function f of x equals to -3 by 4 x raised to power 4 minus 8x cube minus 45 by 2 x square plus 105. First of all, we will do its derivative. So f dash x equals to -3x क्यूब -24x स्क्वायर -45x. तो यहाँ से -3x कॉमन निकल गया, पीछे रह गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15. तो f डैश x को हमने इक्वल्स टू 0 रखा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जहाँ हमने फैक्टराइजेशन की. एंड आफ्टर दैट फैक्टराइजेशन x की वैल्यूज़ 0, -3 एंड -5. नाउ इट्स डबल ऑर्डर डेरिवेटिव -9x square minus 48x minus 45. First of all, at x equals to 0, f double dash 0. This is -45, which is less than 0.
that means f of x is maximum at x equals to 0. Or what is the maximum value? Put x equals to 0 and after that we will get f of 0 equals to 105. Now at x equals to -3, f डबल डैश -3 लिया हमने, सो -9 इंटू -3 का स्क्वायर -48 इंटू -3 -45, दिस इज इक्वल्स टू 18, मीन्स टू से ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू इज at x equals to -3 and what is its minimum value? f of -3 पुट कर दोगे and after that at x equals to -5, f डबल डैश -5 पुट किया हमने, दिस इज -30 इज लेस देन 0, so f of x is maximum at x equals to -5, so its maximum value is f of -5 यानी 295/4. Hope so you have understood this test very clearly and this very important question. Now next example, show that the total surface area of a cuboid with a square base and given volume is minimum when it is a cube. When it is a cube means to say if its dimensions are x and y, बेस स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी, तो एजेस हुई उसकी एक्स और वाई, तो कब ये आपके पास वॉल्यूम मिनिमम देगा, सॉरी गिवन वॉल्यूम है एंड टोटल सरफेस एरिया मिनिमम देगा व्हेन इट इज़ अ क्यूब. दैट मीन्स एट द एंड हमारे पास होना चाहिए कि x इक्वल्स टू वाई. सो नाउ व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? दिस इज एक्स वाई जेड यानी x into x into y, this is x square y. Now surface area of cuboid, surface area of cuboid that is 2 into LB plus BH plus HL यानी 2 into x square plus xy plus xy यानी 2x square plus 4xy हो गया. तो यहाँ हमने xy यानी y के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट की v अपॉन एक्स स्क्वायर. क्योंकि गिवन वॉल्यूम है इसलिए हम इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं. सो योर फंक्शन इज़ s इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स. फॉर मिनिमम सरफेस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इट्स डेरिवेटिव, दैट मीन्स ds अपॉन dx इक्वल्स टू 0. तो हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया 2 इंटू 2x माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल्स टू 0 रखा हमने, तो एक्स क्यूब माइनस वी इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ v एंड आफ्टर दैट वी विल डू इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हमने यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया उसका, फिर इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे. तो x की वैल्यू हमने वहाँ पे पुट की, दिस इज इक्वल्स टू 12. दिस इज़ ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स सरफेस एरिया इज़ मिनिमम. सो एट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ v, सरफेस एरिया इज़ मिनिमम. तो x की वैल्यू हमारे पास आई क्यूब रूट ऑफ v, दैट मीन्स v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, लेकिन v की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर y. तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब है यहाँ, तो एक x रह गया हमारे पास, दैट मीन्स y इक्वल्स टू x. तो जो वो क्यूबॉइड था वो क्या है? क्यूब ही है. And this is proved. These are the very important questions. Thank you and have a nice day.